Today we have with us CA Nitish Kumar Chugh, who is contesting the upcoming NIRC election, and we are sitting here for an exclusive interview of 15 minutes in which we will be discussing about the candidature of CA Nitish Kumar Chugh. I am CA Nitesh Parashar from Faridabad. I will be taking this interview from Nitish Kumar Chugh. So sir, are you ready for it? Yeah, very ready for the same. So the first question I would say about Nitish, why you are contesting this NIRC? What is your vision? This should be a one-line short answer, because I want audience should only see this video as a short and crisp video so that they can able to judge your candidature for NIRC. First of all, thank you Nitesh ji for inviting me on this platform and a very good evening to all the listeners. जैसा कि आपने कहा कि एक क्रिस्प वीडियो बनानी है और टू द पॉइंट आंसर देना है, तो आई विल बी वेरी टू द पॉइंट, आई विल कीप माई आंसर टू द पॉइंट. सो आपने पूछा कि मेरा विजन क्या है. अगर मैं इसका वन लाइन आंसर दूं आपको, वन लाइन आंसर तो देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आई विल मेक इट इन टू लाइन्स. ओके, फर्स्ट वन इज टू identify more professional opportunities for young professionals, and the second one is to bring more transparency into the working of the NIRC. So as far as the transparency is concerned, Nitish ji, do you really think so that current NIRC team has not done that much favor with this word transparency? Transparency is an involving word, right? You do a hell lot of transparency, but it can still be improved, right? So if I say that the current financials of the last 2 years of NIRC are not being audited or they are being delayed, so the person should be made accountable and it should be in the domain of the public. It should be transparent. Every member should have the right to know this. There are other issues also. You can see in the past we have incurred a lot of costs on the interest of GST. So who is accountable for that? There should be a transparency and it should be known to the members of all the members of the region. So do you really think so, Nitish ji, that you will be able to bring that much changes which is required to bring that transparency which you are talking about? Yeah, I'll put my 100% into the same, and I am very confident that I'll be able to achieve the same with the support of all the members that will be elected in the next council. I'll be able to do that. So I just wanted to know one more question from you. Right. Why people vote you? If I ask someone to vote for CA Nitish Kumar Chugh, then why? So नितेश जी, इसका वन वर्ड आंसर तो नहीं हो सकता, वन लाइनर नहीं हो सकता, राइट? सो इसके लिए मैं आपको अपना पूरा विजन बताता हूँ. 2 पॉइंट मैंने आपको बताए सर. द फर्स्ट वन इज रिलेटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, और जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं बट द मेंबर्स आर नॉट नोन टू द मेंबर्स ऑफ द फ्रेटर्निटी. एक तो वो रीजन है सर जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में. यंग मेंबर्स को और सीनियर मेंबर्स को न्यू अपॉर्चुनिटीज का पता लगा के उसको एग्जीक्यूट करना और रेवेन्यू में कन्वर्ट करना इज वेरी इज द नीड ऑफ द आवर, आई वुड से. सेकेंड वन मैंने आपको बताया सर, ट्रांसपेरेंसी. थर्ड वन इज there are so many branches in the region and there are so many branches of the institute. So there should be a collaborative approach so that all come on the same platform and they can serve the member in a much more positive manner. ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इट्स इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर. वी आर ऑल ऑन द लर्निंग स्टेज. हम आज कुछ करते हैं, कल उसको डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो जाता है. सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इनोवेटिव टेक्निक्स इनटू द सेम. कोई जो भी हम आज की डेट में कोरोना काल में आप देख रहे हैं, कोरोना काल में वेबिनार्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं. इफ यू सी जीएसटी की कोई एक नोटिफिकेशन आती है एंड देयर आर ए नंबर ऑफ वेबिनार्स ऑन द सेम. कुछ हद तक सही भी है लेकिन कुछ गलत भी है इसके अंदर कि एक ही टॉपिक के ऊपर बार रिपीटिवली आप वेबिनार करते चले जा रहे हैं. तो उसको हम एक ऐसा कर सकते हैं कि रीजन लेवल पे तो एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. आप प्राइवेट करिए, ब्रांच इंस्टीट्यूट लेवल पे तो ऐसा होना चाहिए ना कि अथॉरिटेटिव वेबिनार होने चाहिए, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट कि रिसोर्सेस को इकट्ठे पूल करके आप एक बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं. सो नितिश जी, अगर मैं आपकी इस बात को समझ पाया तो यू वांट टू से कि जो हम अभी तक वेबिनार और सेमिनार्स कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आई वुड से, राइट,
everybody is doing on the same topics. Nobody is concentrating on the new avenues, I would say, for the young chartered accountants or the chartered accountants in the industry, I would say. So, do you really think so that NIRC has more power rather than doing this webinar? Because I think कि जो NIRC है उसके पास सिर्फ पावर ही सिर्फ वेबिनार्स करने की ही है. एंड डू यू रियली थिंक कि दे कैन कंट्रोल द ब्रांचेस ओवर द वेबिनार्स? क्योंकि अल्टीमेटली कौन सा वेबिनार करना है कौन सा नहीं करना, इट इज अप टू द ब्रांचेस. क्योंकि ब्रांचेस को भी आपने अगर वहां पे भी चेयरमैन होते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स होते हैं, दे हैव राइट टू डू वेबिनार्स और उनका मेन काम भी वही है, आई वुड से इंफॉर्मेशन शेयर करना. देन डू यू रियली थिंक सो कि दैट NIRC कैन एबल टू कंट्रोल दिस फ्रेमवर्क? सर कंट्रोल नहीं करना किसी को, हमें साथ लेके चलना है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज करनी है. और देखिए सर क्या होता था जब सेमिनार का कंसेप्ट होता था ना, तो एक सेमिनार फरीदाबाद ब्रांच ने कर लिया, एक सेमिनार पानीपत ब्रांच ने कर लिया, तो वहां पे जो जेंट्री होती थी, जो गैदरिंग होती थी वो डिफरेंट होती थी. फरीदाबाद वाले सेमिनार अटेंड करने पानीपत नहीं जाते थे या गुड़गांव नहीं जाते थे. लेकिन वेबिनार में तो सारे बैरियर्स ही ब्रेक हो गए ना सर. वट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग द रिपीटेशन? रिपीटेशन करने की जरूरत क्या है आपको? आपने टैक्सेशन पे गिरीश आहूजा जी का एक वेबिनार कर लिया, दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आप 24/7 कभी भी आप उसको देख सकते हैं. वट इज द नीड कि आप उसको रिपीटेडली किसी दूसरी ब्रांच जो है वो उनको इनवाइट करके सेम वेबिनार करें? आई मीन इफ यू कैन हैव अ डिफरेंट टॉपिक और अ सब टॉपिक तब तो ठीक है, बट अगर बजट के ऊपर ही डिस्कशन करना है, वन वीडियो इज मोर देन इनफ. दिस इज माई पॉइंट. और मुझे किसी को कंट्रोल नहीं करना सर, हमें सबको मिलकर साथ में चलना है. अगर हमारी सबकी यही थिंकिंग होगी, इन दैट केस इट विल बी फ्रूटफुल फॉर द प्रोफेशन. नहीं, आई डू एग्री विद योर पॉइंट दैट देयर शुड नॉट बी रिपीटिशन ऑफ द वेबिनार्स. बट मेरे को ये लगता है कि जो ब्रांचेस के वेबिनार्स होते हैं उसमें ब्रांचेस के लोकल जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं आपस में. ऑल्दो यू हैव वेरी गुड पॉइंट कि वो रिपीटिशन शुड नॉट बी देयर. सर चलो ये तो हो गई एक वेबिनार की पॉइंट ऑफ व्यू की बात. एक आपने बात बोली कि यू वांट टू क्रिएट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. नए यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप करनी है. Do you really think so that you will be able to do, as far as the NIRC candidates are concerned, as a NIRC member, you will be able to deliver it? Because as far as my knowledge is concerned, the more power lies in the hand of Central Council member. Right. तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बीच में ही काटने की कोशिश करूंगा नितेश जी. मैं थोड़ा सा वर्ड्स को दोबारा रिपीट करूंगा. आई सेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स. सो आइडेंटिफिकेशन मीन्स जनरेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज तो है, हमें सिर्फ उन्हें आइडेंटिफाई करके मेंबर्स को बताना है कि ये अपॉर्चुनिटीज है. जैसे कि फॉरेंसिक ऑडिट है, बहुत सारे मेंबर्स जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, एक बहुत अच्छी फील्ड है, उसमें आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं वो मेंबर्स को बताना है. नया कारो इम्प्लीमेंट होने वाला है. कारो में देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि प्रोफेशनल को ऑडिट के टाइम पे रिपोर्ट करने हैं, बट दे can give guidance to the clients before the end of the financial year. So this is a new opportunity for the professionals. तो हमें कोई as an NIRC member we don't have powers to create any opportunity, right? वो तो सारी की सारी CC के पास है. हमें तो सिर्फ क्या करना है, जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो मेंबर्स तक पहुंचा देनी है. That's it. तो मेरा नितेश जी एक क्वेश्चन और आता है इसी बात से. हाँ जी कि आपको नहीं लगता कि एज ए मेंबर ऑल्सो यू कैन डू इट? Right? Why you want to get elected in NIRC if you want to do this thing? सिर्फ इसी पॉइंट पे नहीं आ रहा सर. मैं NIRC में I told you I am having 4 agenda points. This is one of them. Okay. Right. Okay. So this is not the only agenda कि मैं सिर्फ लोगों को ये बताने आ रहा हूँ कि कौन सी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. इसके अलावा मैं I think I should not say this, but we are running फ्री क्लासेस फॉर वैल्यूएशन एंड IBC फॉर ओवर लास्ट 1 year. जब से कोरोना आया है हम लोग मॉर्निंग में क्लासेस देते हैं, इवनिंग में क्लासेस देते हैं. जो मुझे जानते हैं व्यूअर्स, दे मस्ट बी नोइंग इट. एंड इट इज नॉट कि जस्ट की अपॉर्चुनिटीज बताने के लिए आई वांट टू कम टू द काउंसिल. आई वांट टू सर्व द प्रोफेशन नाउ. आई हैव अर्नड अ लॉट, आई हैव लर्नड अ लॉट. नाउ इट इज टाइम टू पास ऑन टू द यंगर जनरेशन. That's great. If you have a thinking like this, then this is something which is very positive, I would say. And one more question, Nitish ji, I want to ask. As a NIRC member, do you
think so that the government, which is putting the pressure, I would say, on the chartered accountants, be it tax audit, be it GST audit, be it now we are receiving the news that meanwhile the company audit can be vanished up to 2 crores. Do you really think so? This is a very good step as far as our profession is concerned. What is your point on this particular aspect? सर अभी मैं इसके ऊपर आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि देयर इज नथिंग इन दी पब्लिक डोमेन. अभी ऐसा कोई थ्रेट इमीडिएटली नहीं नजर आ रहा. हालांकि दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी वेल आंसर्ड बाय सीसी कैंडिडेट और सम अदर सिटिंग मेंबर, बट स्टिल आपने पूछा है तो मैं इसका रिप्लाई देता हूं सर. जीएसटी ऑडिट और टैक्स ऑडिट की लिमिट्स को एनहांस कर दिया, दैट इज अ फैक्ट. उसमें कोई ट्विस्टिंग हम नहीं कर सकते, दैट इज ऑलरेडी बीन डन. तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं मेंबर्स के लिए कम हुई हैं. अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट भी जाएगा तो डेफिनेटली जो टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज हैं उसमें जो स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स हैं उनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू हिट होगा ही होगा. दैट इज अ फैक्ट. बट इफ यू सी, अगर हम इसको पॉजिटिवली लें, जब एक दरवाजा बंद होता है तो बहुत सारे और दरवाजे खुल जाते हैं. हमें यही मान के चलना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर ये जाते भी हैं ऑडिट्स हमारे पास, तो देयर आर प्लेथोरा ऑफ अदर ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल. वी विल ट्राई कि जो भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सेंट्रल काउंसिल को देना है या मिनिस्ट्री को देना है कि ऑडिट्स ना जाएं, हम तो यही कोशिश करेंगे अपनी तरफ से. बट स्टिल इफ इट हैज टू बी डन, नथिंग कैन बी डन. एंड इफ यू से, अगर मेरा आप ओपिनियन इस पे मानेंगे तो अब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं. सो इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ यूके, सिंगापुर, वहां पे भी सेम कंडीशंस हैं कि जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके नीचे की इनकम पर ऑडिट्स जो है वो कंपलसरी नहीं है. सो वी आर मूविंग टू दैट मॉडल. तो डेवलपिंग से जब डेवलप होंगे तो कुछ ना कुछ तो फॉरगो करना ही पड़ेगा. बट आई डू एग्री कि टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज में दिस इज दी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड इट इज गोइंग टू हर्ट देम. सेंटर में आएंगे, सेंट्रल काउंसिल में या रीजनल काउंसिल में, अभी पहला स्टेप तो रीजनल काउंसिल का है, तो विल मेक अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम. Thank you, Nitish ji. This was a very short and the crisp, I would say, discussion with you. And the last question, I would say, what message you have to give to the viewers about your candidature on NIRC? सर एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा. हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन होती है. दैट इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दी मेंबर्स. तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपना वोट जरूर कास्ट करिए, अपने कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करिए, नो योर कैंडिडेट, डू दी बैकग्राउंड चेक. बैकग्राउंड चेक आप खुद करिए, किसी के कहने पे मत आइए, किसी के प्रेशर में आके वोट मत कास्ट करिए. अपना कैंडिडेचर को जानिए. मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो आई हैव अ वेबसाइट विद मी, दैट इज www.canitishchuk.com. आप जाके स्टडी करिए. मेरा मिशन, मेरा विजन, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, माय कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. यू गो एंड स्टडी, एंड आपको लगता है कि बंदा जो है वो वर्क डिजर्व करता है, देन ओनली यू कास्ट दी वोट. अदरवाइज आप सब कैंडिडेट्स को आप स्क्रूटनाइज करिए और जो आपको लगता है डिजर्विंग है उनको वोट करिए, बट डू गो फॉर दी वोटिंग. नितिश जी, आपने बहुत सही बात बोली कि सबको वाउच करो, बट टू वेरी फ्रैंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ए मेंबर टू वाउच 50 कैंडिडेट्स. क्योंकि मैंने जो देखा था लास्ट इलेक्शन में, देयर वर अप्रॉक्सिमेटली 50 कैंडिडेट्स इन NIRC एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू वाउच ईच एंड एवरी कैंडिडेट. बट येस, that is true that it is a responsibility of member to send a person like you, I would say, in the NIRC who has a very great vision and the mission for the profession. Thank you for joining with us. Thank you, sir. Nitish ji. Thank you. Thank you.